Hello everyone. Today I am going to explain you a very important topic, that is determiners. Determiners have a very important role in English. Determiners are words used before noun when referring to a specific or general thing to show possession or to tell how much or how many. In simple words, students, we can say that determiner is a word that limits the meaning of a noun. There are many words which are used as determiner. For example, we can say a, an, few, many, little, etc. are words which are used as determiners. A determiner is always followed by a noun. For example, many people came to the party. Please give me my book. These trees are so beautiful. Here you can see that people is the noun and we have used many as determiners. In the second sentence, book is the noun और इससे पहले हमने my determiner use किया है. Same. In the third sentence, these trees are so beautiful. Here, trees are noun और उससे पहले we have used determiners. It means कि determiner noun से पहले use किया जाता है और noun के meaning को limited करता है. जैसे हम यहाँ पर कुछ लोगों की बात नहीं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं. किस बुक की बात कर रहे हैं? That is my book. In the same way, in third example, we are talking about these trees, not any other tree. Now, I'll tell you kinds of determiners. Determiners may be classified based on the function they perform. First of all, the kind of determiner is articles. आप सभी article का use जानते हैं. Even then, I will explain you in brief. A and N is used before singular countable nouns. A का use हम सभी consonant sound के साथ करते हैं and N is used before all 5 vowel sounds. For example, आप देख सकते हैं, look, the new plant has a flower. Here, flower is starting with a consonant sound. इसलिए हमने इसके पहले a vowel का use किया है. Second example is, we need an artist to paint all our window glasses. Here, the noun is artist. Artist because it is starting with a vowel sound. इसलिए इसके पहले हम an article का use करेंगे. तो आपको ये क्लियर हो चुके होंगे ए का यूज़ कहाँ है और एन का यूज़ कहाँ है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है. द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक द रेड कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज न्यू. यहाँ पर आप देखो हम रेड कार की बात कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक कार वी हैव यूज द वॉवल द आर्टिकल द. इन द सेम वे हाउस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हाउस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द. अनदर एग्जाम्पल इज द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वेंट फॉर अ वॉक. यहाँ पर हमने ओल्ड मैन से पहले द का यूज़ किया है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, सभी ओल्ड मैन की बात नहीं कर रहे हैं.
इसी तरह से हमने यंग बॉय से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक और a particular young boy. So the use of article is the most important part of determiners. Now we will talk about demonstrative determiner. Demonstrative determiner का यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, these and those are demonstrative determiners. this का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं नियर बाई थिंग्स के लिए. that is used to show a distance for singular nouns. in the same way, these are used with plural nouns and those is used with plural nouns. like, can you give me this pencil? यहाँ पर दिस पेंसिल से मतलब है कि मैं इसी पेंसिल की ओर इंडिकेट कर कर कह रही हूँ जो मेरे पास है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दोज चिल्ड्रेन आर क्वाइट नॉटी. यहाँ पर आप देखें, चिल्ड्रेन इज अ प्लूरल वर्ड और प्लूरल वर्ड को इंडिकेट करने के लिए जो हमसे दूरी पर हैं, आई हैव यूज्ड द वर्ड दोज. सो in demonstrative determiners, it is used to point out person or thing. The next one is interrogative determiners. Interrogative determiners, जैसे कि नेम से ही इंडिकेशन मिलता है, it is used to ask questions like what, which and whose. For example, what time will we reach? Which city is your favorite? Whose pens are those? यहाँ आप देखें कि यहाँ पर what, which and whose का यूज़ हमने क्वेश्चन वर्ड के रूप में किया है, क्वेश्चन पूछने के लिए. और इनका प्रयोग हमने नाउन से पहले भी किया है, टाइम, सिटी एंड पेन. दीज 3 वर्ड्स आर नाउन. तो इंटरोगेटिव डिटरमाइनर का यूज़ हम करते हैं किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए. पॉजेसिव डिटरमाइनर्स. पॉजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो पोजीशन शो करते हैं. सो पॉजेसिव डिटरमाइनर्स आर लाइक माई, योर, हिज, हर, इट्स, दियर एंड आर. these words, these pronouns are used as possessive determiners जो यूज़ किए जाते हैं पोजीशन शो करने के लिए. लाइक Our house is on a hill. यहाँ पर house is a noun and are is used to show the position. किसका घर? हमारा घर. Is she your sister? Here the word sister is a noun and your is used to show the position. क्या वो तुम्हारी बहन है? We are talking about only your sister. Okay? So these words are used to show position. That's why they are called possessive determiners. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ determiners of distribution. Determiners like each, every, either and neither show distribution. Each is used when members of a set are considered individually and the verb used is singular. each का यूज़ हम तब करते हैं जब एक ही सेट के और एक ही ग्रुप के मेंबर्स के बारे में हम इंडिविजुअली बात करते हैं, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं. ईच मेंबर ऑफ द टीम पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली. टीम के प्रत्येक मेंबर ने उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट किया. मीन्स यहाँ पर टीम के हर मेंबर की बात की गई है, इंडिविजुअल मेंबर की बात की गई है. सो वी हैव यूज्ड हियर ईच. इन द सेम वे, every is used when a large but indefinite number of people or things are considered individually. every का यूज़ हम
उस कंडीशन में करते हैं जब एक लार्ज लेकिन इनडेफिनिट नंबर ऑफ पीपल या थिंग्स की बात हम इंडिविजुअली करते हैं। जैसे एवरी मैन डज हिज ड्यूटी। Either stands for any one of the two or each of the two. Either का यूज़ हम दो में से किसी एक के लिए या दो में से प्रत्येक के लिए करते हैं। प्रत्येक इन द सेंस कि दोनों में से दोनों के लिए ही हम either का यूज़ करते हैं। Example is here. You can pick up either of the boxes. आप बॉक्सेस में से कोई भी उठा सकते हो। यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हो। नाइदर इज द अपोजिट ऑफ आइदर एंड मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर। नाइदर आइदर का अपोजिट है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक नहीं, ना ही कोई दूसरा। ये भी टू के सेंस में ही यूज़ किए जाते हैं, दो के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ही बिलोंग्स टू neither the ruling party nor the opposition। वो ना तो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है और ना ही अपोजिशन से बिलोंग करता है। मीन्स दोनों में से किसी एक से भी बिलोंग नहीं करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट आइदर इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस whereas neither is used in नेगेटिव सेंस। तो आई होप कि आपको डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गए होंगे। नाउ द लास्ट डिटरमाइनर इज डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स। क्वांटिटी एज द नेम शोज मात्रा एंड और क्वांटिफायर जो मात्रा और संख्या दोनों के लिए ही यूज़ किया जाए। Some determiners of quantity may be used with countable nouns, while others are used with uncountable nouns or with both. Some examples are some, many, any, enough, whole, little, a little, all, several, a lot, few, a few. All the ordinal numbers like first, second and numbers 1, 2, etc. Example you can see, give me a little sugar. मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। यहाँ पर a little is used to show the quantity. Do you have any book? Here any word is used to tell the it is used for numbers. Do you have any books? It means we are using any with countable noun. जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ हम some, many, any, all, several, a lot, a few, first, second, 1, 2, etc. वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम नहीं काउंट कर सकते मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल, ए लिटिल, मच आदि वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। बट इनके साथ भी हम सम, एनी, होल, ऑल, अ लॉट ऑफ वर्ड्स जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखें। There is not much water left in the tank। यहाँ पर हमने much का यूज़ किया है क्योंकि water को हम काउंट नहीं कर सकते। It is not a countable noun. Water is an uncountable noun जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसकी क्वांटिटी जान सकते हैं। इसलिए water के साथ हम much का यूज़ करेंगे। तो जिन चीज़ों की हम क्वांटिटी जानते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और उनके साथ हम मच, ऑल, लिटिल, ए लिटिल जैसे वर्ड्स का यूज़, डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं।